Hello guys, good evening to everyone. Welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss about the new topic. The name of topic you can see that is called DNA packaging. तो क्या होता है DNA packaging? आइए चलिए डिटेल में स्टार्ट करते हैं. Okay guys, let's start. What is meant by the DNA packaging? See, इससे पहले हमने जो जो टॉपिक देखा हुआ था वो टॉपिक था हमारा, यस याद कीजिए क्या था टॉपिक था डीएनए रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन का मतलब क्या हमने देखा था? डीएनए रेप्लिकेशन का हमने मतलब देखा होता कि जैसे हम एक डीएनए में से दूसरे डीएनए की कॉपी करते हैं उसे हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन. तो आज का हमारा जो पर्पस है वो है डीएनए पैकेजिंग. तो सबसे पहले हम पिछले लेक्चर्स के बारे में एक 2 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं. हमने पिछले लेक्चर में डीएनए रेप्लिकेशन देखा था और हमने क्या देखा था बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में. हमने ये देखा था कि जब हम एक डीएनए में से दूसरे डीएनए की कॉपी बनाते हैं उसे हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन. और उसका बेसिकली अगर हम देखें तो पर्पस क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन का? तो पर्पस होता है डीएनए रेप्लिकेशन का कि एक डीएनए की कॉपी हम डॉटर सेल को ट्रांसफर कर सकते हैं और एक डीएनए की कॉपी हम खुद के पास रख सकते हैं. तो वो होता है डीएनए रेप्लिकेशन का पर्पस. In the last lecture, we discussed about DNA replication and the basic purpose behind the DNA replication doing that by the DNA replication we are making a one more copy of DNA out of the original DNA and one copy we are transferring into the daughter cell and one copy we are keeping it for the own self. That is called DNA packaging. Sorry, that was called DNA replication. But now we are going to discuss about DNA packaging. Why I am telling you DNA replication and DNA packaging? Just because both are relevant to each other, both are related to each other. I'll tell you why. See, this is the one cell, and inside the cell there is one nucleus is available, and inside the nucleus one DNA is available. When we are doing DNA replication, we are making one more copy of DNA from this DNA. Yes. And then we are undergoing cell division and we are producing new cell by the division or cell division. Yes. And after cell division we are giving this DNA to this cell. So we are transferring this DNA to this daughter DNA. Remember, when we are transferring this DNA to the daughter cell, in between from movement from the parent cell to the daughter cell, some restriction endonuclease enzyme may cut this DNA and therefore we are protecting this DNA by DNA packaging. देखो सिंपली डीएनए पैकेजिंग का पर्पस क्या है? जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में हमने एक में से 2 डीएनए बनाए थे, तो जो दूसरा डीएनए है उस डीएनए को हमें डॉटर सेल तक प्रॉपर्ली सेफली पहुंचाना है. और जब हम उसे सेफली पहुंचाने की बात करते हैं तब हमें उस डीएनए को प्रॉपर्ली ऐसा कवर करना पड़ेगा ताकि उसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उसे कट ना कर सके. मान लो हमने एक में से 2 डीएनए बना लिए, डीएनए रेप्लिकेशन हमने सक्सेसफुली कर ली, लेकिन ये जो एक एक्स्ट्रा कॉपी डीएनए की बनी है, जब हम उस डीएनए को डॉटर सेल में ट्रांसफर करेंगे और उस वक्त अगर कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उस डीएनए को कट कर देती है तो क्या होगा? अगर वो एंजाइम उसे कट कर देते तो ऑब्वियसली हमारी मेहनत जो है वो फेल हो जाएगी. फिर हमें फिर से नया डीएनए बनाना पड़ेगा. समझ रहे हैं ये बात? आपको हमें फिर से नया डीएनए बनाना पड़ेगा और ये डीएनए को कोई एंजाइम कट न कर सके इसके लिए हम उस डीएनए को क्या करते हैं? ऊपर से पैकिंग कर लेते हैं. उसे हम कहते हैं डीएनए पैकेजिंग. मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ. Just imagine that I wanted to send one gift to my friend to the Ahmedabad. Yes, and if I go to the courier company that please carry this my gift to the Ahmedabad to my friend's destination house. ठीक है? So what I want to do? I want to pack that gift into particular box, and then I will try to make that box as much as protected that will be reach to the target site with a full of safe. Yes, it will be fully safely it will reach to my friend's house. Yes, तो मैंने क्या किया? मैंने उस गिफ्ट को प्रॉपर्ली पैक किया ताकि वो मेरे फ्रेंड के घर तक वो प्रॉपर्ली पहुंच सके, उसके हाथ में वो पहुंच सके. सेम हमने जो डीएनए बनाया हुआ है दूसरा
वो डीएनए प्रॉपरली होस्ट सेल तक पहुंच सके, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उससे पैकिंग करना पड़ेगा। देखो डीएनए पैकेजिंग आप लोगों को मैं इजीली समझा दूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो बुक में नहीं दिया होता है, हमारे बुक में टॉपिक दिया होता है डीएनए रेप्लिकेशन, हमारे बुक में टॉपिक दिया होता है डीएनए पैकेजिंग, लेकिन ये नहीं दिया होता है कि उसके पीछे उसका पर्पस क्या है। तो पहले मुझे आप बता दीजिए कि आप लोगों के पर्पस समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो हम आगे बढ़े। कम ऑन फास्टली बता दीजिए। कम ऑन गाइस, फास्टली बता दीजिए। कम ऑन गाइस, चैट चैट करके बता दीजिए समझ में आ गया पर्पस क्या है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन के पीछे। कम ऑन जल्दी सब लोग कमेंट कीजिए। ओके चलो हम आगे बढ़ते हैं। सो आप लोगों को डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए पैकेजिंग का पर्पस समझ गया था। डीएनए पैकेजिंग क्यों की जाती है, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन का मैंने आपको पर्पस समझाया हुआ था कि वो क्यों करते हैं। आज हमने पैकेजिंग का भी पर्पस देख लिया कि ये क्यों करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि डीएनए पैकेजिंग बिल्कुल कैसे की जाती है। डीएनए पैकेजिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं बेसिकली। लेट्स स्टार्ट गाइस। सो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं डीएनए पैकेजिंग क्या है। इट इज अ प्रोसेस by which entire DNA, it is a process by which entire DNA is packed, entire DNA is packed by अगर हम नहीं भी लिखें तो चलेगा, entire DNA is packed so that no restriction endonuclease enzyme will restriction endonuclease enzyme will not cut DNA molecule. yes, ये देखिए डेफिनेशन में उसका पर्पस भी हमें समझ में आ जाता है। डीएनए पैकेजिंग इट इज अ प्रोसेस, ये कैसी प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस बाय विच एंटायर डीएनए मॉलिक्यूल, पूरा का पूरा डीएनए मॉलिक्यूल, एंटायर डीएनए मॉलिक्यूल इज packed so that no restriction endonuclease enzyme will cut the DNA. ठीक है, ये कैसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम पूरे के पूरे डीएनए को पूरी तरह से पैक कर लेते हैं। और क्यों पैक करते हैं, ताकि कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को टच भी ना कर सके। अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को टच करती है तो क्या होगा, डीएनए कट हो जाएगा, क्योंकि ये एंजाइम का काम ही होता है डीएनए को कट करना। अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में से कट टच करती है तो अल्टीमेटली डीएनए टूट जाएगा, कट हो जाएगा। और ये डीएनए कट ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, डीएनए को पैकिंग करते हैं। आइए चलिए देखते हैं डीएनए पैकेजिंग कैसे होता है। सो डेफिनेशन समझ में आ गई आपको, पहले पढ़ गई। डीएनए पैकेजिंग इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच एंटायर डीएनए मॉलिक्यूल इज पैक्ड सो दैट no restriction endonuclease enzyme will cut the DNA molecule. Yes, now let's begin with the process. For your kind information, DNA packaging is done by DNA packaging is done by specialized simple protein, and the name of protein is, DNA packaging is done by the specialized simple protein and the name of protein is histone protein. You know why histone protein is called simple protein? Histone protein को हम simple protein क्यों कहते हैं? अगर आपने प्रोटीन की केमिस्ट्री सुनी हो तो प्रोटीन के दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है सिंपल प्रोटीन और एक होता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अब सिंपल प्रोटीन वो वाले प्रोटीन होते हैं जिस प्रोटीन में कोई भी प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं होता है, मतलब सिर्फ अमीनो एसिड की चेन होती है।
और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन वो वाले प्रोटीन होते हैं जिसके अंदर अमीनो एसिड की चेन तो होती है, उसके साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप भी होता है. Why we called histone protein as a simple protein? Because say histone protein contain only long chain of amino acid. That is why they are called simple protein. But conjugated proteins are those proteins which are having long chain of amino acid along with a prosthetic group. So that is something a different one. This is something different. I'll tell you guys. So DNA packaging is done by this specialized protein called histone protein. Now I'll tell you biochemistry of histone protein. Histone protein is a positive in charge. It's a positive in charge and basic in pH. What is basic? I mean to say alkaline in pH. इनका जो चार्ज होता है हिस्टोन प्रोटीन का वो पॉजिटिव चार्ज होता है और इनका जो पीएच होता है वो बेसिक मतलब अल्कलाइन पीएच होता है. हिस्टोन प्रोटीन इज मेड बाय two type of protein. Histone protein is made by two type of protein. These proteins, two type of amino acids. प्रोटीन दो प्रकार के प्रोटीन से नहीं बना हुआ है, गलती हो गई मुझसे बोलने में. हिस्टोन प्रोटीन दो अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड से बना हुआ है. एक है लाइसिन एंड दूसरा है अर्जिनिन. Yes, histone protein is a simple protein made by two type of amino acid. One is lysine and second one is arginine. I'll tell you, lysine is positive in charge and arginine is also positive in charge. This is also basic in pH and this is also basic in pH. Yes, दोनों का देखो चार्ज क्या है, दोनों का चार्ज है पॉजिटिव. दोनों का पीएच क्या है, दोनों का पीएच भी है पॉजिटिव. तो अल्टीमेटली हिस्टोन प्रोटीन का चार्ज क्या हो जाएगा. हिस्टोन प्रोटीन दो अलग अलग अमीनो एसिड से बना है, लाइसिन और अर्जिनिन. अगर लाइसिन और अर्जिनिन दोनों का पीएच अगर बेसिक है तो ऑब्वियसली हिस्टोन प्रोटीन का पीएच भी बेसिक होगा. अगर लाइसिन और अर्जिनिन दोनों का चार्ज पॉजिटिव है तो हिस्टोन प्रोटीन का भी चार्ज पॉजिटिव होगा. तो हमें डीएनए को पैक करने के लिए कौन सा प्रोटीन यूज कर रहे हैं हम डीएनए को पैक करने के लिए पॉजिटिव चार्ज अल्कलाइन पीएच वाला प्रोटीन यूज कर रहे हैं जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन. अब हम देखते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन के कितने टाइप आते हैं. बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन्स हैव four types but number is 8. हिस्टोन प्रोटीन के कितने टाइप है, हिस्टोन प्रोटीन के 4 टाइप है लेकिन उनके नंबर टोटल कितने, तो उनके नंबर टोटल है 8. अब ये कैसे, ये देखिए हिस्टोन प्रोटीन्स आर 4 टाइप बट देयर आर 8 इन नंबर सच एज H2A H2A. Yes, H2A then H2B H2B then H3 and then H3 H4 H4. So how many type of histone proteins are there? Histone proteins are totally 4 type. Histone protein are of 4 type like H2A, H2B, H3, H4. But all are twice in number. So total number of histone protein is 8. Total number of histone protein is 8. मैं आपको डीएनए पैकेजिंग से पहले उनकी रिक्वायरमेंट समझा रहा हूँ. ये देखिए एक चीज समझ लीजिए. अगर मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि मुझे मेरे फ्रेंड को अहमदाबाद में गिफ्ट भेजना है तो सबसे पहले मेरे पास एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरे पास गिफ्ट क्या है. ठीक है, मेरा गिफ्ट कोई कांच की चीज है या तो कोई पेपर की है या तो कोई थर्मोकोल से बनी हुई है, मतलब क्या चीज है मेरे पास, कोई फूड आइटम है. ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है मैं पैकेजिंग कैसे करूँगा. मतलब मेरे पास कोई कांच की चीज है तो मैं पहले उसे एक प्लास्टिक बॉक्स में पैक करूंगा, तो वुडन में बॉक्स पैक करूंगा, उसके आसपास में कॉटन रखूंगा या थर्माकोल रखूंगा ताकि अगर कोई ट्रैवलिंग के टाइम अगर उसे कोई धक्का भी पहुंचता है, यस फ्रिक्शन होता है, कोलिजन होता है, तो उसमें कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा. उसके बाद मैं उसे कौन से सेलो टेप से पैक करता हूँ या तो रबर से पैक करता हूँ, रस्सी से पैक करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारे लिए इस टॉपिक में ये है कि हम डीएनए को पैक करने के लिए क्या चीज यूज कर रहे हैं. तो डीएनए को पैक करने के लिए हम हिस्टोन प्रोटीन यूज कर रहे हैं. हिस्टोन प्रोटीन दो अलग अलग अमीनो एसिड से बना हुआ है, लाइसिन और अर्जिनिन. दोनों अमीनो एसिड का पीएच है अल्कलाइन मतलब बेसिक और दोनों अमीनो एसिड का चार्ज होता है पॉजिटिव. अगर इन दोनों अमीनो एसिड का चार्ज पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा. और अगर दोनों अमीनो एसिड का पीएच अगर अल्कलाइन है तो ऑब्वियसली हिस्टोन प्रोटीन का भी पीएच अल्कलाइन आएगा.
हिस्टोन प्रोटीन के टोटल 4 प्रकार हैं, वो है H2A, H2B, H3, H4, लेकिन ये चारों के चारों प्रकार दो दो है, डबल डबल है। तो टोटल हिस्टोन प्रोटीन कितने हुए हमारे सामने? 8 हिस्टोन प्रोटीन हुए। अब इन 8 हिस्टोन प्रोटीन को हम साथ में क्या कहते हैं? इन 8 हिस्टोन प्रोटीन को हम कहते हैं ऑक्टामर। क्या कहते हैं इसे? ऑक्टामर। ये देखिए, सिर्फ 8 हिस्टोन प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? ऑक्टामर। आप ये चीज याद रखिए। इस टॉपिक में आपको 3 ऐसे कंसेप्ट आएंगे जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होंगे समझना। एक होगा ऑक्टामर, दूसरा होगा न्यूक्लियोसोम, ठीक है, दूसरा होगा न्यूक्लियोसोम, और तीसरी कंसेप्ट होगी कोर डीएनए। यस, न्यूक्लियोसोम, ऑक्टामर एंड कोर डीएनए। तो आपने अभी ऑक्टामर समझ लिया। ऑक्टामर मतलब ओनली 8 हिस्टोन प्रोटीन टुगेदर विद ईच अदर, इट इज कॉल्ड ऑक्टामर। आइए चलिए अब डीएनए के बारे में सुनते हैं, उसके बाद मैं आपको पैकिंग करके बताऊंगा कि कैसे पैकेजिंग की जाती है। सो this one is our DNA molecule. Yes, this one is our DNA molecule. Now, which is this DNA molecule? This DNA molecule is prepared by the DNA replication. ये molecule कहाँ से आया है? ये molecule हमने DNA replication process से बनाया हुआ है। ये molecule कहाँ से आया हमारे पास? ये molecule हमने DNA replication process से हमने synthesis किया हुआ है, नया produce किया हुआ है। तो अब हम इस DNA molecule को क्या कर रहे हैं? ऊपर से नहीं, चारों तरफ से पूरा का पूरा में उसे एंटायर डीएनए मॉलिक्यूल को हमें उसे पैक करना है, ताकि कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहीं से भी जाके उसे टच ना कर पाए, कहीं से भी जाके उसे कट ना कर पाए। ये होगी डीएनए रेप्लिकेशन का पर्पस। अब ये देखिए, डीएनए के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? व्हाट इज द चार्ज ऑन द डीएनए? चार्ज ऑन डीएनए इज नेगेटिव एंड pH is acidic। करेक्ट है ना? डीएनए के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है और उसका pH एसिडिक होता है। ऐसा क्यों? आप लोगों को भी पता है। ये देखिए, चार्ज ऑन द डीएनए इज एसिडिक जस्ट बिकॉज़ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीऑक्सीराइबोस। कम ऑन गाइस, डीऑक्सीराइबोस बोलो। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो पीछे होता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं उसे? क्योंकि डीएनए के अंदर एक केमिकल होता है जैसे हम कहते हैं फॉस्फेट ग्रुप, या तो कह लो फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फेट ग्रुप या तो कह लो फॉस्फोरिक एसिड। तो ये जो फॉस्फोरिक एसिड है, वो डीएनए को कौन सा चार्ज देता है? नेगेटिव चार्ज। कोई भी एसिडिक चीज चार्ज कौन सा देती है? नेगेटिव। और पीएच कौन सा देती है? ऑब्वियसली एसिडिक पीएच देगी। तो बेसिकली डीएनए के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज, और पीएच क्या है उसका? एसिडिक। और डीएनए को हम जिस प्रोटीन से पैक करने वाले हैं उसके ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज। डीएनए के ऊपर चार्ज है नेगेटिव। और हिस्टोन प्रोटीन का पीएच है अल्कलाइन, मतलब बेसिक, 8 से लेकर 14 तक। यस, 8 to 14। और डीएनए हैव अ पीएच व्हिच इज एसिडिक पीएच बिटवीन 1 to 7। सो देखो, दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, चार्ज में भी और पीएच में भी, मतलब दोनों की कॉन्ट्रास्टिंग फीचर काफी ज्यादा है। आइए चलिए डिटेल में अब आगे जाते हैं, ठीक है। सो एज वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट हिस्टोन प्रोटीन इज गोइंग टू पैक द डीएनए मॉलिक्यूल। द चार्ज ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इज पॉजिटिव एंड पीएच इज alkaline, and the charge of a DNA molecule is acidic and charge of DNA molecule is negative and pH is acidic. So let's start how we can pack the DNA molecule. So this is the double helical structured DNA molecule, and we are going to pack this DNA molecule with the help of different variety of a histone molecule. So here we goes H2A first histone molecule, and then second histone molecule such as H2A, then H2B, and then H2B, and then H3 and H4 and H4. Here we have attached the all histone protein molecule on the DNA molecule. अब इस वक्त हमने डीएनए के ऊपर हमने हिस्टोन प्रोटीन के जितने भी टाइप है वो चारों के चारों टाइप, मतलब टोटल 8 मॉलिक्यूल हमने हिस्टोन प्रोटीन के 8 मॉलिक्यूल हमने डीएनए के ऊपर अटैच कर दिए हुए हैं। लेकिन अभी भी देखो, यहां से यहां तक गैप है, यहां से यहां तक गैप है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। मान लो अगर हम कोई फार्म लेते हैं, ठीक है, मान लो एक ऐसा हम ग्राउंड, एक प्लॉट वगैरह लेते हैं, तो यहां से यहां तक हमने एक प्लॉट लिया हुआ है, ठीक है, यहां से यहां तक हमने एक प्लॉट लिया हुआ है।
अब उसमें हमने यहाँ पे कुछ ऐसे पिलर डाल दिए हुए, ठीक है, ये बताने के लिए कि ये एरिया मेरा है, लेकिन कोई भी बंदा यहां से भी अंदर जा सकता है, तो यहां से अंदर नहीं जाए, इसके लिए हम उसे तार से जोड़ देंगे, ठीक है, हम उसे तार से जोड़ देंगे ताकि यहां से कोई भी अंदर नहीं जा पाएगा। सेम वे हमने डीएनए को 8 हिस्टोन प्रोटीन से कवर तो कर दिया है, लेकिन ये जो बीच में गैप है, उस गैप को भी हमें भरना पड़ेगा। अगर हमने उस गैप को नहीं भरा तो वहां से भी कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अंदर जा सकती है और डीएनए को ब्रेक कर सकती है। We have covered the complete DNA molecule with the help of four type of histone protein, or actually 8 number of histone protein. But still, some gaps are remain. And if any restriction endonuclease goes in between these two molecules, in between these two histone protein, then such a restriction endonuclease can break the DNA molecule, and ultimately our success will turn into the failure. So we have to cover the entire DNA molecule. But now 8 histone proteins are completed. So how we will cover? हमें पूरा का पूरा डीएनए मॉलिक्यूल का पैक करना है, हमें कोई भी ऐसी गैप नहीं छोड़नी है। अगर यहाँ पे इस गैप में से कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अंदर चली जाती है तो हमारी पूरी की पूरी जो मेहनत है वो धरी की धरी रह जाएगी, मतलब पानी फिर जाएगा उसके ऊपर। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एक नया डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेशन करना पड़ेगा, फिर हम ये डीएनए मॉलिक्यूल को डॉटर की तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज होती है, तो अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि इस ये जो गैप है उस गैप को हम कैसे फिल करें। तो इस गैप को भरने के लिए हमें यहाँ पे जैसे मैंने एक तार का यूज किया हुआ है, लोहे की तार का, तो सेम वे हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे एक फाइबर का यूज करना पड़ेगा। उस फाइबर को हम कहते हैं क्रोमोसोमल फाइबर, और उसका दूसरा भी नाम होता है, दिस फाइबर इज आल्सो कॉल्ड सेलेनॉइड फाइबर। ये फाइबर की साइज कितनी होती है, इट इज अराउंड 30 नैनोमीटर। हाउ मच? 30 नैनोमीटर। और अगर हम इसे एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट करें तो कितना एंगस्ट्रॉम होगा, 300, कितना हो गया एंगस्ट्रॉम, 30 नैनोमीटर इज इक्वल टू 300 एंगस्ट्रॉम। इट्स अ थर्ड फोर्थ टर्म। देखिए हमने फाइबर यूज करना है, ये देखिए ये है फाइबर, कौन सा फाइबर है ये है सेलेनॉइड फाइबर, या तो इसे कह लो क्रोमोसोमल फाइबर। सेलेनॉइड फाइबर या तो इसे कह लो क्रोमोसोमल फाइबर। देखो हमने पैक कर लिया हमने पैकेजिंग। तो इस प्रकार से हम पैकेजिंग करते हैं और अब इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अंदर नहीं जा सकती। और अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अंदर नहीं जाएगी तो अल्टीमेटली हम क्या कर सकेंगे, हम डीएनए पैकेजिंग सक्सेसफुली कर सकेंगे, हम प्रॉपर्ली डीएनए पैकेजिंग कर सकेंगे। एक चीज और ये याद देखिए, ये जो सेलेनॉइड फाइबर है उसकी साइज कितनी होती है, उसकी साइज होती है 30 नैनोमीटर। 30 नैनोमीटर मतलब एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, तो एंगस्ट्रॉम में होता है ये, एंगस्ट्रॉम कितना होता है, एंगस्ट्रॉम होता है ये 300 एंगस्ट्रॉम। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। सो 30 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम, 300 एंगस्ट्रॉम। और अगर हम टर्म में देखें तो कितनी साइज होती है इसकी, 3/4। मुझे यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कैसे ठीक से नहीं दिख रहा है, सब तो क्लियर है। ओके गाइस, मैं आप लोगों की कमेंट ही पढ़ रहा था क्योंकि कमेंट पढ़ने के लिए मुझे कंप्यूटर पे डेस्कटॉप पे जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये था हमारा डीएनए पैकेजिंग। लेकिन एक चीज जो अभी मैंने समझानी बाकी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने कंसेप्ट देखी ओक्टामर, ठीक है। अब ये देखिए ओनली 8 हिस्टोन प्रोटीन इट इज कॉल्ड ओक्टामर। बट व्हेन दिस octamer means when this positive charge histone protein wrapped on negative charge DNA molecule, this is
दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं वैसे? न्यूक्लियोसोम। ये देखिए only 8 histone protein, only 8 histone protein is called octamer. But when this positive charge DNA, when this positive charge histone protein wrapped around, wrapped मतलब चॉकलेट के ऊपर हम कैसे कवरिंग करते हैं उसे हम कहते हैं wrapping. So when positive charge histone protein wrapped around negative charge DNA molecule, this structure is called nucleosome when you see it in a इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डीएनए के ऊपर हिस्टोन प्रोटीन की कवरिंग देखो तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे? इस वाले स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे न्यूक्लियोसोम। क्या नाम देंगे? न्यूक्लियोसोम। और एक और मॉलिक्यूल होता है जिसे हम कहते हैं कोर डीएनए मॉलिक्यूल। कोर डीएनए मॉलिक्यूल, व्हाट इज कोर डीएनए मॉलिक्यूल? कोर डीएनए मॉलिक्यूल इज जनरली H1 प्रोटीन। व्हाट इज दैट H1 प्रोटीन? देखो ये जो हमने पूरा का पूरा पैक कर लिया हुआ है, अब इस डीएनए मॉलिक्यूल को हमें डॉटर सेल तक खींच के लेके जाना पड़ेगा। तो इसे खींच के कौन लेके जाएगा? H1 प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? H1 प्रोटीन। लेकिन ये हिस्टोन प्रोटीन के अंडर में नहीं आता है, ठीक है। एक चीज याद रखिए, मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, अगर मुझे मेरा कोई गिफ्ट मेरे फ्रेंड के पास भेजना है अहमदाबाद में, तो मैं सबसे पहले मेरे घर में से एक बॉक्स में पैक करके उसे एक सेलो टेप लगा के लेके जाऊंगा, ठीक है। फिर कुरियर वालों को लगेगा कि उनको पता है, हमसे ज्यादा उनको पता है कि कुरियर वाले कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैसे हैंडलिंग करते हैं। तो उनका ऐसा कहना है कि अगर मैं ऐसे ही प्रोडक्ट को बेच देता हूँ तो शायद ये प्रोडक्ट है ना वहां तक सेफली ना पहुंचे, बीच में ही कहीं ब्रेक हो जाए। तो वो मुझे क्या सजेस्ट करते हैं कि आप इसके ऊपर और एक अच्छी वाली मोटी वाली टेप लगाइए ताकि ये सेफली पहुंचे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमने पैकेजिंग की है वो सफिशिएंट नहीं होती। हमने जो पैकेजिंग की है वो कभी कभी सफिशिएंट नहीं होती, तो हमें उसके ऊपर एक सेकंड लेवल मतलब हायर लेवल की पैकेजिंग करनी पड़ती है। कौन सी लेवल की? हायर लेवल की पैकेजिंग जो इसके ऊपर बनती है। तो ये जो पैकेजिंग है वो हिस्टोन प्रोटीन से पैकेजिंग है, और अब हम इसके ऊपर एक और पैकेजिंग करेंगे। यस, दिस पैकेजिंग, सी यू कैन सी दिस वन, this packaging is called higher level packaging or also known as a secondary level पैकेजिंग। इसे हम कहते हैं हायर लेवल पैकेजिंग और सेकेंडरी लेवल पैकेजिंग। और ये किससे की जाती है? ये की जाती है NHC प्रोटीन से। अब NHC प्रोटीन का फुल फॉर्म होता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो सबसे पहली पैकेजिंग हमने किससे की थी? सबसे पहले पैकेजिंग हमने हिस्टोन प्रोटीन से की थी, और अब हमने सेकेंडरी लेवल जो पैकेजिंग की है वो हमने नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन से की हुई है। सेकेंडरी लेवल पैकेजिंग हमने नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन से की है। तो ये वाला कंसेप्ट थी हमारी डीएनए पैकेजिंग। मैं आपको पूरा एक बार फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। एक बार आपको मराठी में समझाता हूँ। सी, आपण डीएनए पॅकेजिंग म्हणजे काय करतो? डीएनए पॅकेजिंग अशी बायोलॉजिकल प्रोसेस आहे ज्याच्यामध्ये आपण पुराच्या पुरा डीएनए ला कव्हर करून घेतो, पुराच्या पुरा डीएनए ला पॅक करून घेतो, जेणेकरून कुठली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एन्झाइम कुठूनही नको घुसायला। जर कुठली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मध्ये चालली गेली डीएनए ला, तर त्या डीएनए ला कट करून टाकेल, डीएनए चे तुकडे करून टाकेल। जर डीएनए चे तुकडे झाले तर अल्टिमेटली डीएनए रेप्लिकेशन करून आपण एकाचे जे दोन डीएनए बनवलेले त्याचा फायदा नाही होणार आपला, आणि जर फायदा नाही होणार तर आपल्याला डीएनए रेप्लिकेशन 0 पासून सुरू करावं लागेल। हे ऍक्च्युअली पर्पज आहे की आपण डीएनए पॅकेजिंग कशासाठी करतो। तर बघा, आपण तुम्हाला पर्पज समजून गेला डीएनए पॅकेजिंग कशासाठी करतो। डीएनए पॅकेजिंग करण्यासाठी आपल्याला हिस्टोन प्रोटीनची मदत लागते, आणि हिस्टोन प्रोटीन हे पॉझिटिव्ह चार्ज आणि अल्कलाइन पीएच म्हणजे बेसिक पीएच असतात। कारण हिस्टोन प्रोटीनचे दोन प्रकार असतात, लायसिन आणि अर्जिनिन। लायसिन आणि अर्जिनिन दोघांचा चार्ज पॉझिटिव्ह असतो, दोघांचा पीएच अल्कलाइन म्हणजे बेसिक असतो, आणि त्याच्यामुळे हिस्टोन प्रोटीन वरती पण चार्ज पॉझिटिव्ह येतो, आणि त्याचा जो पीएच असतो तो पण अल्कलाइन असतो म्हणजे बेसिक पीएच असतो। हिस्टोन प्रोटीनचे 4 प्रकार असतात।
H2A, H2B, H3 आणि H4, पण चारही मॉलिक्यूल डबल डबल असतात, म्हणजे ते टोटल 8 असतात. या 8 हिस्टोन प्रोटीनला आपण एक सोबत काय म्हणतो, ऑक्टामर. मग हा जेव्हा पॉझिटिव्ह चार्ज ऑक्टामर म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज हिस्टोन प्रोटीन डीएनए वरती कव्हर करतो, तर या स्ट्रक्चरला आपण म्हणतो न्यूक्लिओसोम. जर आपण इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपने बघितलं तर याला पण बीट्स ऑफ अ स्ट्रिंग सारखा स्ट्रक्चर दिसतो, याला पण म्हणतो न्यूक्लिओसोम. ठीक आहे. फक्त 8 हिस्टोन प्रोटीनच काम नाही चालणार, आपल्याला त्यांच्या हिस्टोन प्रोटीनच्या मधलं जो गॅप आहे ते सुद्धा फायबरने भरावा लागेल. त्या फायबरला आपण म्हणतो सिलेनॉइड फायबर किंवा क्रोमोझोमल फायबर. त्याची लेंथ आहे 30 नॅनोमीटर, म्हणजे एंगस्ट्रॉम मध्ये 300 एंगस्ट्रॉम. मग टोटल बघितलं तर ते 3/4 टन आहे. 3/4 टन TURN एवढा बेसिकली त्याची साईज आहे. त्याच्यानंतर एक कोर डीएनए मॉलिक्यूल पण असतो. हा कसं H1 प्रोटीन आहे जो नवीन पॅक केलेल्या डीएनए ला डॉटर सेल पर्यंत पोहोचवायचं काम करतात. ठीक आहे. काय वेळेस असं असतो की प्रायमरी लेवल पॅकेजिंग जे आहे डीएनए चे हिस्टोन प्रोटीनच्या मदतीने ते सफिशियंट नसते, मग आपण सेकंडरी लेवल पॅकेजिंग करतो, याला पण म्हणतोय हायर लेवल पॅकेजिंग किंवा तर सेकंडरी लेवल पॅकेजिंग. आणि हे आपण कशाने करतो, प्रायमरी लेवल आपण हिस्टोन प्रोटीनने केलं, सेकंडरी लेवल आपण नॉन हिस्टोन क्रोमोझोमल प्रोटीन केलेली आहे. तर हे असतं डीएनए पॅकेजिंग. मला तुम्ही आता ओपिनियन द्या तुमची, तुम्हाला हा टॉपिक आवडला आणि तुम्हाला इजीली समझला का, सांगा मला. यस, आप सभी लोग मुझे बता दीजिए कि आप लोगों को टॉपिक समझ गया. रिप्लाई दीजिए, कम ऑन फास्ट.